guys, welcome to the engineering concept. As you know, I have already make a video about automobile engineering. So I think why not I should make a video about properties of material, because we all have knowledge about the property of material to study about the engineering application and engineering function. So let's start. So property of material have very important role in our engineering application. So why we need study about it before our production engineering as well as automobile engineering, manufacturing engineering. So in this video I discuss about the property of material, why we need property of material. When we start our task as to complete for it, we need a type of material, and in our engineering application there are variety of materials. So we use the material according to our requirements and according to our demands. So why we need to study about the manufacturing and properties of material. So when we start a construction of our building, then we need a raw materials as bricks, cement, raw material as power, man supply. So we need a property of bricks. The bricks should be in high quality, and the bricks should have a high strength so that it can bear a high load, and the cement should be high quality, a good quality. So for this we have a knowledge about the property of material. Let's take an example. If I want to manufacturing to this pencil, then we need a high quality of material, which is. So before we start our engineering application here, so we need a high quality of material or good quality of material so that these application can bear a high load. So in manufacturing there are a lot of engineering property of material. It is not one, two or three. The property of material is six types, which is. So these are the property of material: physical property, chemical property, thermal property, electrical property, and mechanical property. So in our engineering application we need only mechanical properties, but we discuss about all type of property, but we discuss in detail to the mechanical property. So what is physical property? So physical property are those property of a material which can see to the human eyes, means size of the material, color of the material एंड शेप ऑफ द मटेरियल. तो फिज़िकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मतलब किसी भी मटेरियल की शेप के बारे में, साइज के बारे में और कलर के बारे में हम देख कर ही पता कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टी. और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी मटेरियल हैज़ all the property. If any material has the physical property, then it is not necessary that that material should have a chemical property or should have a thermal property. As if a human in good in behavior, then it is not necessary that it must have good in study, you know. And the second one is chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे हमारा कोई मटेरियल है, हम उस मटेरियल को एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद वो हमारा मटेरियल गैस की फॉर्म में या फिर इसेंटिकल गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. जैसे हम अपने मटेरियल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद उसके कलर में क्या चेंज आ गया, तो उसी को बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी. And third one is thermal property. So thermal property is a type of property in which if
if I burned this material from this side, then how easily the temperature increase from this point to the this point. तो थर्मल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम यहाँ पर ये हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो बर्न करने के बाद ये टेम्परेचर हमारा कैसे इंक्रीज़ होता है, तो हमारी ये बताती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होती है थर्मल प्रॉपर्टी में, और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब जैसे हमारा कोई भी मटेरियल है, हमने उसको हीट दी इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया, तो कहाँ पर जाकर वो पिघल जाएगा, कहाँ पर जाकर वो मेल्ट हो जाएगा। तो हमारी ये बताती है थर्मल प्रॉपर्टी। मान लो हम बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन की। When the drill machine start works, if it start drills on this surface, then the tool, जो टूल होता है हमारा ड्रिल मशीन का, वो किस मटेरियल से बना हुआ है कि वो हमारा वर्क करते में मेल्ट नहीं हो। तो उसी मटेरियल के हम सबसे पहले यही देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि वो मेल्ट नहीं हो। तो ये हमारी ये थर्मल प्रॉपर्टी बताती है मेल्टिंग होने के लिए और हमारे टेम्परेचर को देखने के लिए। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जैसे हम यहाँ पर एक करंट फ्लो करते हैं, तो ये हाउ इजीली करंट फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू द दिस साइड। तो हमारा करंट कितनी इजीली से फ्लो हो सकता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देन उसके बाद आती है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ही डिटेल में बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। बाकी की प्रॉपर्टी थी फिज़िकल प्रॉपर्टी थी, जो हमारी हम देख के बता सकते थे कि ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी अच्छी है या बेकार है। मान लो ये हमारा पेन था, एक हमारा ये है, तो हम दोनों को देख के बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, इसका साइज़ क्या है। तो ये हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज़ ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइड ए डायरेक्ट फोर्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम देख के नहीं बता सकते कि ये इस मटेरियल की या इस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी है या अच्छी नहीं है। तब तक हम उस पर एक डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड नहीं कर देंगे, तब तक नहीं बता पाएंगे हम। तो हम डिटेल में बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। सो दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आई हैव रूट इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, brittle, hardness, strength, malleability, fatigue and creep. तो we will discuss in details about all the property of material. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मटेरियल M1 है, इफ़ वी हैव ए मटेरियल A and the second material is B. I don't know about the material, it is aluminum, copper, it is just a material A and B. If we talk about that, which material have the high mechanical properties, we cannot tell without having an external force applied on it. हम देखकर नहीं बता सकते कि मटेरियल ए की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी है या मटेरियल बी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी है, जब तक हम इस पर एक एक्सटर्नल लोड अप्लाइड नहीं करेंगे। इफ़ आई अप्लाइड ए 100 kilonewton force on the material B and applied a 50 kilonewton force on the material A, अगर मैं मटेरियल ए पर 50 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ और मटेरियल बी पर 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो हम फोर्स अप्लाइड करने के बाद ही हमको पता लगेगा कि मटेरियल ए और बी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी है। अगर ये हमारा मटेरियल बी 100 किलो न्यूटन फोर्स को सहन कर लेता है और ये फ्रैक्चर नहीं आता इसमें, तो ये हमारी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी है। सिमिलरली यहाँ अगर हमारी 50 किलो न्यूटन फोर्स हम मटेरियल ए पर अप्लाई करते हैं, अगर ये बेयर कर लेता है तो इसकी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी है। तो हम इसको देख के नहीं बता सकते जब तक हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। तो मैं डेफिनेशन दे देता हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइड डायरेक्ट फोर्स ऑन द
ऑफ मटेरियल, तो विच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइड डायरेक्ट फोर्स। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारी प्रॉपर्टी आती हैं, इलास्टिसिटी मटेरियल की, इलास्टिसिटी मटेरियल की, स्टिफनेस मटेरियल की, डक्टिलिटी, सारी के बारे में हम बात करेंगे। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को हम एक साथ बात करेंगे और डक्टाइल और ब्रिटल को हम एक साथ बात करेंगे, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें दोनों में फ़र्क। सो इलास्टिसिटी होती क्या है? इलास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलास्टिसिटी होती क्या है। तो इलास्टिसिटी होती क्या है? इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिगेन इट इज़ ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। मान लो ये कोई हमारा रोड है, किसी भी मटेरियल की हमारी ये रोड है और इसकी लेंथ है हमारी 100 मीटर। इफ़ आई अप्लाइड एन एक्सटर्नल लोड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ दिस मटेरियल, अगर मैं एक एक्सटर्नल लोड अप्लाइड करता हूँ इस मटेरियल की दोनों साइड से, तो लोड लगाने के बाद देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ दिस material and the change in length will be maybe 150 mm. Suppose हमारे पास एक मटेरियल था, हमने क्या किया, उस पर एक एक्सटर्नल लोड लगाया, लोड लगाने के बाद उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होने के बाद हम अगर इस लोड को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, अगर ये हमारा 150 मीटर जो हमारी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ था ये अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि डेफिनेशन में कहा है, विच रिगेन इट इज़ ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव। पहले हमारी लेंथ क्या थी? 100 मीटर। हमने लोड लगाया दोनों तरफ, लोड लगाने के बाद क्या हुआ? लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ 150 mm, 50 mm का। तो हमने क्या किया, जब ये लोड को हमने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ये हमारा मटेरियल अपनी 100 मीटर में दोबारा आ गया ओरिजिनल शेप में, तो इसी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच टेक ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हुई तो इसकी प्लास्टिसिटी कम होगी, अगर किसी मटेरियल की प्लास्टिसिटी ज़्यादा हुई तो इसकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो प्लास्टिसिटी के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिसिटी कहीं ना कहीं हमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन बताती है। सो प्लास्टिसिटी विच टेक परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। इफ सपोज वी हैव ए टाइप ऑफ मटेरियल, दिस इज ए रोड of any material and this road have a length of 50 meter. If we applied an external force from the both side of this road, after applied force to this type of material, to this type of road, the increment of its length will be हमारे पास एक रोड थी, हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद हमारी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम लोड को हटा दें, लोड हटाने के बाद ये हमारी लेंथ अगर 60 मीटर ही रह गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई, तो इसी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में, प्लास्टिसिटी दोनों की एक उल्टी होती है, इन्वर्स होती हैं। इलास्टिसिटी में क्या था? इलास्टिसिटी में हम लोड लगाने के बाद इंक्रीमेंट हुआ, लोड हटाने के बाद वो अपनी पुरानी अवस्था में आ गई, उसी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। लेकिन प्लास्टिसिटी में लोड लगाने के बाद हमारा मटेरियल ने अपनी परमानेंट डिफॉर्मेशन ले लिया, तो इसी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। उसके बाद बात करते हैं स्टिफनेस। तो स्टिफनेस होती क्या है? स्टिफनेस एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। जो हमारा मटेरियल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर ले, उसी को हम बोलते हैं स्टिफनेस। इफ़ वी हैव ए मटेरियल ए एंड मटेरियल बी एंड आई फिक्स्ड वन एंड ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी,
if I want to deform to the material A and material B 1 mm, यदि मैं मटेरियल ए और बी को 1 मीटर 1 mm डिफॉर्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे आई नीड एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द मटेरियल बी 100 kN, and for the deformation of 1 mm in material A I need a force of 50 kN to the material A। तो डिफॉर्मेशन मटेरियल ए की सही होगी या मटेरियल बी की सही होगी? मेरे पास मैंने क्या कहा, मटेरियल ए और बी में 1 mm का मुझे डिफॉर्मेशन लाना है। उसके लिए मुझे 100 kN फोर्स अप्लाइड मटेरियल बी पे करना पड़ रहा है और 50 kN ए पे करना पड़ रहा है। तो स्टिफनेस मटेरियल कौन से मटेरियल की ज़्यादा होगी? मटेरियल बी की ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करने पड़ रहा है 1 mm के लिए। यहाँ पर 50 करना पड़ रहा है, यहाँ पर 1 mm, यहाँ पर 100 kN कितने के लिए? 1 mm के लिए। तो हमारी स्टिफनेस मटेरियल बी की ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं मटेरियल हमारा बी ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टाइल। तो डक्टाइल क्या होती है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ईजिली कन्वर्ट इनटू ए वायर, थिन वायर। तो मैं लिख देता हूँ, एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कितनी इजली हमारे वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को बोलते हैं हम डक्टाइल। जैसे हमारे पास ये मटेरियल था, हमने इस पर फोर्स लगाया, एंड आई अगेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू दिस मटेरियल, again an external force is applied to this material, and I again an external force applied to this material. Finally, when I continue applied an external force to this material, then finally it will be break. पहला मटेरियल ऐसा था, मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और लास्ट में जाकर वो उसकी एक लिमिट आ गई और वो ब्रेक हो गया हमारा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि मैक्सिमम अमाउंट में इसने डिफॉर्मेशन एब्जॉर्ब किया बिफोर द फ्रैक्चर। तो डक्टाइल यही होता है हमारा कि हमें इंडिकेशन मिलता रहता है मटेरियल के टूटने से पहले हमारा ये ऐसा था, हमने फोर्स लगाई, ऐसे होता रहा, ऐसा होता रहा, ऐसा होता रहा, ऐसा होता, और यहाँ पर जाके ये ब्रेक हो गया। उसके बाद हम ब्रिटल लेते हैं। ब्रिटल क्या होते हैं? तो ब्रिटल होता कैसा मटेरियल होता है हमारे पास? इफ वी हैव अ मटेरियल एंड आई अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू दिस मटेरियल, again I applied an external force this material, and finally these material break in two step। तो हमने डक्टाइल में क्या देखा था? मटेरियल डक्टाइल तक कब था? जब हमारा मटेरियल हमको इंडिकेशन दे रहा था कि ये टूटने वाला है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन नहीं देता, ये फटाक से टूट जाता है यहाँ पर। तो ये होती है ब्रिटल में। ये हमारा कोई मटेरियल है, अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करूँ, बीच में से ऐसा करूँ, तो ये यहाँ पर सडन टूट जाए, तो इसको बोलेंगे हम कि ये मटेरियल ब्रिटल है। अगर ये सडन नहीं टूटे, बार बार ऐसा करना पड़े, खींचना पड़े, तब जाकर ये टूटे, तब उसको बोलेंगे हम डक्टाइल मटेरियल। तो यही फ़र्क होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं डक्टाइल मटेरियल में। डक्टाइल मटेरियल हमने देखा कि इसमें मोर डिफॉर्मेशन हुआ बिफोर द फ्रैक्चर, डिफॉर्मेशन होता रहा जब तक हमारा फ्रैक्चर नहीं हुआ। यहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ लेकिन बहुत कम हुआ बिफोर द फ्रैक्चर। तो यही फ़र्क होता है डक्टाइल में और ब्रिटल में। ब्रिटल में हमको इंडिकेशन नहीं मिलता कि मटेरियल टूटने वाला है, ये फटाक से टूट जाता है जब भी हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। बट डक्टाइल मटेरियल में हमको कंटिन्यू एक इंडिकेशन मिलता है कि मटेरियल टूटने वाला है, कि उसकी एक लिमिट आने वाली है।
तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिख दिए। मोर डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, नो डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर और सडन ब्रेक। ये सडन ब्रेक होता है लेकिन ये सडन ब्रेक नहीं होता। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ होती क्या है? एबिलिटी टू विदस्टैंड विद हाई स्ट्रेंथ विदाउट फेलियर। It is a type of material A and the second material B, and material A have the 30 pascal of tensile strength and material B have the 40 pascal of tensile strength. If we applied a 20 Newton force on the material A and 40 Newton force on material B, so how can withstand the material A and B with the force? तो हम देखेंगे कि इसकी 30 पास्कल थी, जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी थी मटेरियल की लोड की वो 30 पास्कल थी, और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी थी वो थी हमारी 40 पास्कल। तो 30 पास्कल थी कि 30 पास्कल तक ये हमारा सहन कर सकता है। हमने इस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो ब्रेक हो गया। थी तो 30 पास्कल की उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, लेकिन 20 पे ही वो फेल हो गया, टूट गया। तो ये इसकी स्ट्रेंथ मटेरियल ए की अच्छी नहीं है। और हम यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी थी 40 पास्कल की और हमने इसका फोर्स अप्लाई किया 40 न्यूटन का, और ये हमारा फेल नहीं हुआ। तो ये हम बोलेंगे मटेरियल बी की स्ट्रेंथ इज गुड देन द मटेरियल ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है फटीग। तो फटीग इज द वीकनिंग ऑफ द मटेरियल caused by the continuous applied load in a cyclic way। तो हमारे पास कोई मटेरियल है, अगर हम उस पर ए नंबर ऑफ साइक्लिक लोड अप्लाइड कर रहे हैं और वो बेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम कि इसकी फटीग स्ट्रेंथ अच्छी है। तो वो होती है हमारी फटीग प्रॉपर्टी। तो फटीग इज द वीकनिंग ऑफ मटेरियल। तो फटीग इज द वीकनिंग ऑफ मटेरियल caused by applied continuous load in cyclic way। हमारे पास ये मटेरियल कोई रोड थी, मटेरियल था कोई, तो हमने ऐसे ना लगा कर इस पर लोड, हमने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे घुमा कर इस पर साइक्लिक वे में लोड लगाया, ऐसे ऐसे करके। तो लोड लगाने के तो हमने साइक्लिक वे में एक लोड लगाया। तो लोड लगाने के बाद हमारा ये मटेरियल ब्रेक हो गया, तो हम बोलेंगे इसकी फटीग स्ट्रेंथ सही नहीं है। तो ये होती है हमारी फटीग स्ट्रेंथ। उसके बाद एक आती है ये क्रीप। क्रीप क्या होती है? क्रोप प्रॉपर्टी। तो क्रीप प्रॉपर्टी होती क्या है? विच रेजिस्ट द लोड टिल ए लॉन्ग ड्यूरेशन। हमारे पास ये कोई रोड थी या कोई मटेरियल था हमारा, अगर इस पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 महीने 6 महीने साल 2 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद तब जाकर मटेरियल फेल होगा, तो उसको बोलेंगे हम क्रीप। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस पर कोई भी लोड अप्लाइड होना चाहिए, तब जाकर वो फेल होगा। जैसे हम देखो हमारे पास एक मटेरियल ए था, रोड थी कोई मटेरियल की, और एक मटेरियल की रोड ये थी। इसकी हमारी बेयरिंग कैपेसिटी थी वो थी 30 मेगा पास्कल, मतलब 30 मेगा पास्कल तक ये हमारा लोड अप्लाइड कर सकता था। अगर हमने 30 से ज़्यादा कर दिया तो फ़ौरन ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमने इस पर अगर 20 मेगा पास्कल का लोड न्यूटन का लोड अप्लाइड किया, तो क्या हुआ, ये मटेरियल हमारा इसको सहन कर लेगा, कुछ नहीं होगा इसको। और दूसरा मटेरियल था हमारा 40 मेगा पास्कल का। 40 मेगा पास्कल, अगर हम 40 न्यूटन ही इस पर फोर्स, एक कंप्रेसिव नेचर का फोर्स अप्लाइड करें एक लंबे समय तक 10 साल 20 साल 50 साल कंटिन्यू ही हम इस रोड पर एक कंप्रेसिव नेचर का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो तब भी ये हमारा कहीं ना कहीं जाकर ब्रेक हो जाएगा। कब? जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस पर लोड अप्लाइड करते रहेंगे। हालांकि इसकी 40 मेगा पास्कल बेयरिंग कैपेसिटी है, 40 का ही हम फोर्स अप्लाइड करें तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्रीप बताता है कि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी पर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाएंगे तो वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।